طویل صوفوں پر خاندانی بزرگوں کا ایک چھوٹا سا مجمع یوں بیٹھا تھا جیسے کسی قدیم عدالت کا سما ہو۔ دادا جان تیمور صاحب صوفے کے بیچ میں براجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جسے وہ اس وقت مسل رہے تھے۔ جب انہیں لگا تھا کہ فیصلہ حتمی ہے، ان کا ایک ایک لمحہ خاندانی عزت، عہد و پیما اور ارحم کے بیرون ملک مستقبل کے گرد گھوم رہا تھا۔ لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے انہیں حرین کی رضامندی کا ایک سطحی سا ڈرامہ کرنا تھا۔ اسی رسمی سکوت کو چیرتی ہوئی حرین دروازے سے لرزتے نہیب قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب تھا مگر چہرے پر ایک فیصلہ کن باغیانہ سختی نمایاں تھی۔ اس کا سرخ دوپٹہ کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے شانوں سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ سیدھی دادا جان کے قدموں میں گرنے کی بجائے صوفے سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان پھنسی ہوئی آواز میں چیخی تھی، مجھے ارحم لالا سے شادی نہیں کرنی۔ تیمور صاحب کے چہرے پر فوری غصہ ابھرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے حرین، آداب کو بھولو مت۔ حرین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے مگر اب اس کی آواز میں خوف کی بجائے ایک مجبوری کی صداقت تھی۔ معافی چاہتی ہوں دادا ابو، مگر میں اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتی۔ وہ ارحم لالا بانجھ ہیں۔ کمرے میں جیسے بجلی گر گئی۔ تیمور صاحب کا رنگ فک ہو گیا۔ ماحول میں چھائی اس خوفناک خاموشی کو محسوس کیا جا سکتا تھا جیسے خاندان کے بڑوں کو سانپ سونگ گیا ہو۔ یہ صرف شادی کا انکار نہیں تھا، یہ ایک ایسی نجی اور حساس تہمت تھی جو صدیوں پرانے خاندان کی بنیادوں کو ہلا رہی تھی۔ حرین کی یہ بات سن کر سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کوئی یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کم عمر لڑکی نے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے اس سخت گیر اپنے ارحم لالا پر اتنی بڑی تہمت کیسے لگا دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ دادا جان کی غضبناک آواز کمرے کی چھت سے ٹکرائی۔ تم کیا جانتی ہو ان باتوں کے بارے میں؟ یہ کیسا گھٹیا الزام ہے؟ ٹھیک اسی لمحے جب ماحول پر طاری اس سنجیدگی نے اپنے قدم جما لیے تھے، دروازے کے عقب سے ایک گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ ارحم خانزادہ وہیں کھڑا تھا۔ اس نے سارا منظر، آنسو اور حرین کی تہمت صاف صاف سن لی تھی۔ ارحم اندر داخل ہوا تو اس کی چال میں وہی معمول کی پختگی تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، صرف سپاٹ سردی۔ سب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے جیسے انتظار کر رہے ہوں کہ خاندان کی عزت پر لگنے والے اس داغ کو وہ کس طرح مٹاتا ہے۔ ارحم حرین سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش جنونیت جھلک رہی تھی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ ارحم کی گرجدار ٹھہری ہوئی آواز پر حرین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھیں ارحم کے چہرے پر جم گئیں جہاں وہ معمول کے خوفناک غصے کے بجائے ایک عجیب ٹھنڈی تجسس کو پڑھ رہی تھی۔ حرین نے خود کو سنبھالا، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس کی آواز میں ڈر کے باوجود ایک اجلت اور گھبراہٹ کی صداقت تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، حرین نے نظر جھکائے کانپتے ہوئے کہا۔ کل اخبار میں ایک ریسرچ آئی تھی، وہ ریسرچ میں نے خود پڑھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا جس سے کوئی آخری کوشش کر رہی ہو۔ اس ریسرچ کے مطابق سگریٹ پینے والے مرد جو زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں مردانہ بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بات پر کمرے میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سرگوشی کی لہر دوڑی مگر ارحم کے لب بھینچ گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس قدر سختی سے مٹھی میں دبا لیا کہ اس کے ناخن سفید پڑ گئے۔ اس کے ذہن میں تیزی سے یہ خیال دوڑا، اس کا مطلب یہ چٹانکی میرے بیڈ روم کی تلاشی لیتی ہے۔ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں، اسے ضرور کوئی ثبوت ملا ہوگا۔ میرے بیڈ کے پیچھے چھپا سگریٹ کا خالی پیکٹ یا کوئی لائٹر۔ ارحم کی آنکھوں میں ایک عقابی چمک ابھری۔ اس سے بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ محض بغاوت نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس میں اس لڑکی نے اس کی نجی زندگی کی جاسوسی کر کے ایک جھوٹا ہتھیار تیار کیا تھا۔ تم نے میرے کسی نجی سامان کو چھوا؟ ارحم نے اب اپنی آواز کو مزید دھیما مگر زیادہ خطرناک بنا دیا۔ تم نے کس اختیار سے میرے کمرے میں جھانکا ہے؟ حرین نے آنسوں کے درمیان اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں لالا، میں تو بس وہ اخبار میرے ہاتھ لگ گیا تھا اور مجھے تشویش ہوئی کہ میری زندگی تیمور صاحب مداخلت کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حرین، یہ تمہاری ذاتی تشویش نہیں، خاندانی عزت کا سوال ہے۔ تم نے بنا ثبوت یہ بات کیسے؟ بس۔ ارحم کی آواز ایک فولادی حکم کی طرح کمرے میں گونجی جس نے تیمور صاحب کو بھی خاموش کر دیا۔ وہ حرین کے جھوٹے دفاع سے مزید دلائل نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک شدید وارننگ بھری نظر سے دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو ارحم؟ دادا جان نے بہت سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیا تمہارے بارے میں اس لڑکی کا الزام درست ہے؟
क्या तुम छुप छुप कर सिगरेट नोशी करते हो, और वो भी घर में? और हमने जेरे लब बड़बड़ाया, तुम्हें तो मैं देख कर रहूंगा मिस हुरैन। कुछ कहा तुमने? दादा जान की बात पर अरहम ने सर चुंका कर इनकी तरफ देखा, जैसे वो अपने अंदरूनी ख्यालात के तूफान से बाहर आया हो। मैं कह रहा था कि नहीं। अरहम ने अब अपना फैसला सुना दिया। इसकी आवाज में अब कोई झिझक या गुस्सा नहीं, सिर्फ फातिहाना कंट्रोल था। ताजी बस निकाह कल ही कर दें, सुबह। मैं मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता। मुझे इस जुमे को ही बिजनेस ट्रिप पर निकलना है। इसने एक तंजिया नजर हुरैन की तरफ डाली, जो अब हैरत से इसे देख रही थी। अरहम के इस अचानक और फैसला कुन इकदाम ने इसके तमाम होश उड़ा दिए थे, क्योंकि इसने इसकी बगावत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए उल्टा निकाह को एक दिन आगे खींच लिया था। फिर वो अकेली यहाँ क्या करेगी? मेरे साथ ही चली जाएगी। ये जुमला हुरैन के लिए एक सजा थी, एक हुक्म जो इसने अपने जलास से बचने की कोशिश में खुद अपने हाथों से लिखवा लिया था। अरहम के इन आखिरी अल्फाज में कोई सवाल या राय की गुंजाइश नहीं थी। ये एक हतमी फैसला था, एक ऐसा हुक्मनामा जिसने हुरैन के तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया। अभी चंद लम्हे पहले तक वो अपने झूठे इल्जाम को अपने दिफा के लिए सबसे बड़ा हथियार समझे हुए थी, मगर अरहम ने इस हथियार को सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि इसी झूठ की बुनियाद पर इसे रातों रात की कैद का परवाना लिख दिया। वो एक लम्हे के लिए भी वहां मजीद बहस या वजाहत के लिए नहीं रुका। इसके निगाह में तोहमत का गुस्सा नहीं, बल्कि खानदान पर कंट्रोल बरकरार रखने का ठंडा अज़म झलक रहा था। दादा जान, जिनकी उम्र भर की सख्त गिरी और वकार को हुरैन के एक जुमले ने हिला दिया था, वो भी हैरत से अरहम को देखते रह गए। तैमूर साहब के होंठ नींबा थे। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर अरहम के चेहरे पर जुनूनी गुस्से की एक ऐसी सर्द लहर थी कि किसी में मुखालफत की जुर्रत न हुई। खामोशी में अरहम ने एक नजर हुरैन पर डाली। वो नजर हमदर्दी या मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि एक मालिक की थी जो फरार होने वाले कैदी को इसकी जगह दिखा रहा हो। बाबा जान, अरहम ने अपने वालिद को मुखातिब किया। इसका लहजा अब नरम मगर फैसला कुन था। निकाह की तमाम तैयारियां कल ही मुकम्मल होनी चाहिए। काजी साहब को बुलाया जाए, मुझे कल रात की फ्लाइट पकड़नी है। इसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अपने सख्त असूलों और फैसलों का बोझ छोड़ गया। अरहम के जाने के बाद कमरे का माहौल फौरी तौर पर पछतावे और तशवीश में बदल गया। हुरैन की माँ, जो इस सारे मामले में खामोश बैठी थी, भागकर हुरैन के पास आई। तुमने क्या कर दिया हुरैन? इसकी आवाज में खौफ था। तुमने खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया, और बदले में क्या मिला? मुझे आजादी चाहिए थी अम्मी, हुरैन ने चीख कर कहा। मुझे इस जलाद की कैद नहीं चाहिए थी। और अब? माँ ने इसे झंझोड़ा। अब तुम इसके साथ 7 समुंदर पार कैद होने जा रही हो। इसने तुम्हारे इल्जाम को कबूल नहीं किया, बल्कि इसे अपनी मर्जी मनवाने का बहाना बना लिया। बुजुर्गों ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा। दादा जान ने गहरी सांस ली और अपने बेटे जहूर साहब को इशारा किया कि फैसले पर अमल किया जाए। खानदान में शोरो हंगामा हो जाए या एक बेबुनियाद तोहमत पर बात बने, दोनों ही सूरतों में खानदान की इज्जत जाती है। लिहाजा खामोशी और सिरत से शादी करवा देना ही वाहिद रास्ता है। हुरैन कमरे के एक कोने में खड़ी थी। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि सफेद खौफ। इसका हर मंसूबा, हर बगावत नाकाम हो चुकी थी। इसने अरहम को कमजोर समझा था, मगर वो फौलाद निकला। जिस आजादी का जश्न मनाने के लिए वो एक दिन पहले जी रही थी, वो सिर्फ 24 घंटे में उम्र कैद की सजाए मौत में बदल चुकी थी। वो लड़खड़ाती हुई अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी। हुरैन ने अपना कमरा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर गिर गई। इसके बदन में तवानाई का एक कतरा भी बाकी ना था। बाहर शादी की तैयारियों का शोर और घबराहट शुरू हो चुकी थी। बरकी कमकमों के चलने की, काजी साहब को बुलाने की और रिश्तेदारों को खबर करने की सरगोशियां, ये खुशी की तैयारियां नहीं, बल्कि उजलत में दी जाने वाली सजा का बंदोबस्त था। वो रोई रोती चली गई, लेकिन इन आंसुओं में अब से बेबसी और शिकस्त का जायका था। इसकी नजरें अपने सामने पड़ी किताबों, अपने पसंदीदा नॉवलों और अपनी डायरी पर गई, जिन्हें वो अरहम के खौफ की वजह से छुपा कर रखती थी। अरहम का वो रवैया जो बचपन से इस पर सख्तगीर असूल नाफिज करता आया था, कॉलेज की छुट्टी पर सवाल, दोस्तों पर पाबंदी, देर से घर आने पर तफ्तीश, ये सब इसके लिए एक मुस्तकबिल की जेल का मंजर था। मैं मर जाऊंगी, इसने अपने आप से सरगोशी की, मगर मैं इस कैद को कबूल नहीं करूंगी। इसका जहन तेजी से काम करने लगा। वो जानती थी कि एक बार निकाह हो गया और वो अरहम के साथ अमेरिका चली गई तो वो किसी भी बैनुल-अक़वामी सरहद से आगे मजीद आजादी की भीख नहीं मांग सकेगी। यह आखिरी मौका था। मैंने हथियार फेंकना नहीं है। इसकी आंखों में फिर से बगावत की एक चिंगारी भड़की। वो अरहम को चैलेंज करने में कामयाब नहीं हुई थी, मगर वो मंसूबे को बदल सकती थी।
اس نے اپنے آنسو پونچھے، چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اب اس کا مقصد ارحم کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ فرار تھا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے عریشہ کا خیال آیا۔ وہ اس کی واحد دوست تھی جو ارحم لالہ کی روبدار شخصیت سے واقف ہونے کے باوجود نہ ڈرتی تھی اور نہ اس کے خلاف بولنے سے کتراتی تھی۔ وہ باغی تھی اور اس وقت حرین کو صرف ایک باغی کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر کے بڑے ارحم کے فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں سنیں گے۔ کل رات ہی جیل کا دروازہ کھلنے سے پہلے اسے اس عمر قید سے بھاگنا تھا۔ حرین بستر سے اٹھی، اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس کے ارادے مضبوط ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا۔ ان دو خاندانوں کی عزت، ارحم کے بزنس ٹرپ اور اس کی بانجھ پن کی تہمت سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اپنی آزادی کی آخری جنگ کا اعلان کرنے کے لیے عریشہ کا نمبر ملایا۔ وہ خود کو ارحم جیسے جلاد کے سپرد نہیں کرے گی۔ کل کا دن اس کی قید کا نہیں، اس کی بغاوت کا گواہ بننے تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ باہر سے مغلئی طعام اور شادیانے کی ہلکی ہلکی آوازیں حرین کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سائمہ بیگم جو حرین کی ماں تھی اس کے لیے قیمتی زیورات اور بھاری عروسی جوڑا لے کر آئی تھی، جسے حرین نے پلنگ پر بے حسی سے پھینک دیا۔ کمرے کا ماحول خوفناک خاموشی اور شدید تناؤ سے بھرا ہوا تھا، جبکہ دروازے کے پار جھوٹی خوشی اور افراتفری کا سما تھا۔ سائمہ بیگم کو احساس تھا کہ ان کی بیٹی کسی عذاب سے گزر رہی ہے، مگر خاندان کی عزت اور ارحم کے سخت فیصلے کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی۔ بیٹا ضد مت کرو، سائمہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ اب بات خاندان کی ناک تک پہنچ گئی ہے۔ ارحم نے صبح کا نکاح طے کر دیا ہے، اب تم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور رات کا کھانا کھا لو۔ نکاح کے بجائے مجھے زہر دے دو امی، حرین نے تلخی سے کہا۔ آپ لوگ مجھے قید خانے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں مسکراؤں۔ وہ ایک جلاد ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ سائمہ بیگم مزید بحث کیے بغیر چلی گئیں، لیکن جاتی دفعہ دروازہ باہر سے لاک کر گئیں تاکہ حرین مزید کوئی جذباتی قدم نہ اٹھا لے۔ اب کمرہ حقیقی معنوں میں اس کے لیے ایک جیل بن چکا تھا۔ حرین نے گھٹن محسوس کرتے ہوئے موبائل فون اٹھایا۔ اس وقت وہ کسی ہمدرد کی نہیں بلکہ ایک باغی ساتھی کی تلاش میں تھی جو اس کے خوف کو عزم میں بدل سکے۔ عریشہ اس کی بہترین دوست ہمیشہ سے خاندانی دباؤ اور قدامت پسندی کے خلاف ایک مضبوط ڈھال رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عریشہ کا نمبر ملایا۔ فون کی دوسری طرف رات کی گہری خاموشی میں عریشہ کی پرسکون آواز آئی۔ ارے حرین، تم نے فون کیا؟ سنا ہے تمہارا کل صبح نکاح ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حرین فوراً رونے لگی۔ عریشہ، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اس نے صبح نکاح طے کر دیا ہے۔ میں اس جلاد کے ساتھ امریکہ نہیں جا سکتی، یہ زندگی بھر کی قید ہوگی۔ عریشہ کی آواز میں فوری طور پر ہمدردی سے زیادہ ایک چنگاری تھی جو حرین کی مایوسی کو جلا سکتی تھی۔ رونا بند کرو حرین، بغاوت ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، بیٹھ کر رو گی یا لڑو گی؟ میں بھاگنا چاہتی ہوں عریشہ، مجھے اس جہنم سے نکلنا ہے جہاں نہ میری مرضی کی کوئی اہمیت ہے نہ ہی میری خواہشات کی۔ جب ان لوگوں کو میری کسی بات کی پرواہ نہیں ہے تو پھر میں ان کی عزت کی پرواہ کیوں کروں؟ عریشہ نے فوراً ایک فوجی جنرل کے انداز میں منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سنو، کل صبح نکاح کا وقت ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر میں شور ہوگا مگر سب بڑے اور ارحم کے والد تھکاوٹ اور رسمی کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تمہیں دوپہر کو کھانے کے فوراً بعد کا وقت چننا ہوگا۔ سب کلولا کریں گے، یہ آخری تیاریاں تھیں، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ حرین نے التجا کی۔ تم بس میرے گھر کا راستہ جانتی ہو، تم میرے پاس آؤ گی۔ ایک بار تم میرے دروازے پر آ گئی تو ارحم لالہ کی مجال نہیں کہ وہ تمہارے قریب بھی آئیں۔ عریشہ نے ایک مضبوط یقین دلایا۔ مگر ارحم بہت چالاک ہے، وہ فوراً مجھ تک پہنچ جائے گا۔ حرین نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہی تو منصوبہ ہے، اسے خواب میں بھی خیال نہیں آئے گا کہ تم میرے گھر میں ہو۔ تم بس اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے بیگ میں چھپاؤ اور اس ملازمہ کو تیار کرو جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو۔ فون رکھنے کے بعد حرین کی آنکھوں سے آنسو غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ گہرا عزم اور سازش کی چمک نے لے لی تھی۔ اس سے کمرے کی تلاشی کا خطرہ تھا، لہٰذا اس نے اپنا سامان چھپانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے چھوٹے کلچ بیگ کو نکالا۔ اس میں اس نے فوراً اپنی آئی ڈی کارڈ جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے والد کے کاغذات سے الگ کیا تھا، اپنا کالج کا اصل شناختی کارڈ اور کچھ پیسے اور تھوڑی سی جویلری ڈالی۔ یہ وہ ضروری کاغذات اور قیمتی سامان تھے جن کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ اس کے بعد اس کا دوسرا کام تھا کسی وفادار معاون کو تیار کرنا۔ اس کی نظریں گھر کی سب سے پرانی ملازمہ رضیہ پر پڑی جو بچپن سے اس کے بہت قریب تھی۔
रजिया इसकी माँ की भी बहुत वफादार थी, मगर हुरैन को यकीन था कि वह इसकी मजबूरी समझेगी। हुरैन ने आहिस्ता से खिड़कियों को खोला और रजिया को इशारा करके अंदर बुलाया। रजिया का चेहरा पहले ही खौफजदा था, क्योंकि इसने भी हुरैन और अरहम के दरमियान होने वाली शदीद झड़प के बारे में सुन लिया था। रजिया, तो मेरी मदद करोगी? हुरैन ने बराह रास्त पूछा। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, मैं अरहम लाला के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। रजिया फौरन रोने लगी। बीबी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अरहम साहब को क्या जवाब दूंगी? मैं तुम्हें जवाब नहीं मांग रही, मैं सिर्फ एक रात की मदद मांग रही हूँ। हुरैन ने इसके हाथ में अपनी छुपाई हुई सोने की एक पतली चूड़ी और कुछ नकद रकम रख दी। ये रखो, तुम्हें बस इतना करना है कि कल दोपहर को जब सब मसरूफ हो, किचन का पिछला दरवाजा खुला रखना और गली के कोने पर एक रिक्शा या टैक्सी का बंदोबस्त कर देना। रजिया की आंखों में लालच और खौफ का मिला जुला तासुर था। सोने की चूड़ी ने इसकी वफादारी को डगमगा दिया। वो जानती थी कि अरहम का गुस्सा कैसा होता है, मगर एक रात की आजादी और ये कीमती तोहफा इससे कई ज्यादा पुरकशिश लगा। साहब को मालूम हुआ तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, रजिया ने सिसकते हुए कहा। मालूम नहीं होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हुरैन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बस कल दोपहर को तुम मेरे पास आखिरी बार आकर कह देना कि सब कुछ तैयार है। साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। कमरे की मध्यम रोशनी में हुरैन के चेहरे पर खौफ के बावजूद बगावत और इंतकाम का एक सर्द अज़म नुमाया था। बाहर शादी के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, मगर हुरैन के जहन में आजादी की एक ऐसी धुन बज रही थी जिससे कल दोपहर को इस कैद खाने से बाहर ले जाने वाली थी। अब सब कुछ कल के दोपहर पर मुनस्सर था, जब खानदान के सबसे बड़े बेटे का निकाह और सबसे छोटी बेटी का फरार एक ही वक्त में होना था। अगले दिन दोपहर के 3 बज चुके थे। हवेली में हलचल अपने अरूज पर थी। निकाह में महज चंद घंटे बाकी थे और वक्त तेजी से दौड़ा जा रहा था। घर में मेहमानों का हजूम तो नहीं था, क्योंकि ये तकरीब जल्दबाजी और सादगी से रखी गई थी, मगर करीबी रिश्तेदारों, सहेलियों और ब्यूटिशियन का शोर गूंज रहा था। किचन में देगें चढ़ रही थी। खुशबुओं का एक तूफान था जो बाहर की तरफ उबल रहा था। घर की खवातीन हंसी मजाक और आखिरी लम्हात की तैयारियों में इस कदर मसरूफ थी कि इन्हें किसी की गैर मौजूदगी का शायबा भी नहीं हो रहा था। हुरैन का कमरा, जहां इससे अरूसी जोड़े में तैयार होना था, इस वक्त एक खामोश जंग का मरकज था। वो पलंग के कोने पर सहमी बैठी थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इससे लगा जिससे बाहर का तमाम शोर इस धड़कन में गायब हो गया हो। इसने अरीशा की हिदायत के मुताबिक अपना छोटा सफरी बैग पहले बिस्तर के नीचे छुपा दिया था। इसके चेहरे पर किसी बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि फरार की मुजरमाना घबराहट छाई हुई थी। दरवाजा हल्का सा खटखटा कर रजिया अंदर आई, जिसके चेहरे पर खौफ और लालच का मिला जुला तासुर था। वो झुककर हुरैन के कान में सरगोशी में बोली, बीबी तैयारी हो गई है। मैंने नकद देकर एक पुराने रिक्शे वाले को गली की नुक्कड़ पर खड़ा कर दिया है। इसे से फरीशा बीबी के घर का पता दिया है। बावर्ची और छोटे मुलाजिम अब खाना खाकर अपने अपने कमरों में तैयार होने लगे हैं। अब वक्त है बीबी, मालिक साहब भी ऊपर वाले कमरे में गए हैं। हुरैन ने गहरा सांस लिया, जिससे डूबने वाले कोई शख्स आखिरी बारों अपने अंदर भरता है। शुक्रिया रजिया, अगर मैं कामयाब हो गई तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसने खामोशी से अपना सादा गहरा नीले रंग का बुर्का निकाला और जल्दी से पहन लिया। बुर्के के अंदर इसने अपने सारे कागजात और कीमती सामान वाला छोटा बैग कंधे में डाल लिया। वो इस हद तक एहतियात कर रही थी कि इसने अपना मोबाइल फोन भी वहीं मेज पर छोड़ दिया, ताकि अगर अरहम फोन का ट्रेस करे तो इसे गुमराही में डाल सके। दरी हंसना हवेली के बलाई हिस्से में अरहम का कमरा खामोश और पुरसकून था। वहीं पर वो बड़े इत्मीनान से तैयार हो रहा था। खिड़की के शीशे से नीचे नजर डालते हुए वो देख सकता था कि बागीचे में लोग गहमा गहमी कर रहे हैं। इससे सफेद शेरवानी को बड़ी नफासत से जेबतन किया, जिसका कॉलर खड़ा और सख्त था। वो शादी के हवाले से जज्बाती नहीं था, बल्कि यह निकाह इसे सिर्फ खानदान की इज्जत और अपने कंट्रोल की एक अलामत था जो इसे साबित करना थी। इसने आईने में खुद को देखा। इसके चेहरे पर वही ठंडी संजीदगी और जुनूनी अज़म था जो कल रात हुरैन की बगावत पर इसने जाहिर किया था। इसका छोटा कजन बिलाल दरवाजा खटखटा कर अंदर आया। लाला, आप तो कमाल लग रहे हैं, निकाह के लिए तैयार हो गए? अरहम ने धीमी हुक्मी आवाज में जवाब दिया। बाहर का माहौल कैसा है? सब कुछ ठीक है? बिलाल ने खुशी से कहा, सब ठीक है, नीचे खुशी का माहौल है, हर कोई आपको मुबारकबाद दे रहा है। बस साइमा खाला कुछ परेशान लग रही थी, शायद हुरैन को रुखसती की वजह से रोना आ रहा होगा। अरहम की होंठों पर एक सर्द हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे इसने फौरन छुपा लिया।
गम या खुशी ये सब बेमायनी है। अहम ये है कि मुआहदा वक्त पर हो। इसने अपनी घड़ी देखी, मुझे अब निकलना चाहिए, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। नीचे हुरैन ने बाहर की हल्की सी खामोशी और घर वालों की मसरूमियत का फायदा उठाया। इसने आहिस्तगी से कमरे का लॉक खोला और चोरों की तरह दबे पांव बाहर निकली। सेम के कोने में बनी किचन का रास्ता निस्बतन खाली था। इसका हर कदम जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे वो पत्थर पर शीशा रख रही हो। वो किचन में पहुंची। बड़े बावर्ची और मावनीन दोपहर के खाने के बाद कुर्सियों पर नीम गनूदगी की हालत में बैठे थे। रजिया कोने में खड़ी बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। रजिया ने आंखों से इशारा किया कि वो पिछला दरवाजा आहिस्ता से खोले। खुदा आपका हाफिज हो बीबी, रजिया ने एक सिसकी में कहा। हुरैन ने सर हिला दिया और अंधेरे तंग पिछले रास्ते से बाहर निकली, जो कूड़े क्रिकेट और पुरानी चीजों से भरा हुआ था। जैसे वो हवेली के चार दीवारी से बाहर खुली गली में पहुंची। ऐसे लगा जैसे वो पहली बार आजाद हवा में सांस ले रही हो। गली की नुक्कड़ पर एक पुराना रिक्शा खड़ा था, जिसका ड्राइवर एक बूढ़ा शख्स था। अरीशा बीबी का घर। हुरैन ने कांपते हुए हुक्म दिया। रिक्शा तेजी से आगे बढ़ा। हुरैन ने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इसके दिल ने चीख कर कहा, आजादी मैंने कर लिया। दोपहर का वक्त था। मेहमानों ने हवेली में आना शुरू कर दिया। साइमा बेगम अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए बड़े कमरे में आई और ब्यूटिशियन को हुरैन के कमरे में भेजने के लिए इशारा किया। हुरैन को ले आओ, इससे अब तैयार होना है, साइमा बेगम ने ब्यूटिशियन से कहा। ब्यूटिशियन ने दरवाजा खटखटाया, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर देखा, जहां हुरैन मौजूद नहीं थी। बाजी वो तो अंदर नहीं है। साइमा बेगम का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। शायद वॉशरूम गई होगी, देखो। मगर जब वॉशरूम भी खाली मिला तो हर आसानी का तूफान इनके दिल में उठा। इन्होंने अलमारी देखी, कुछ कपड़े गायब थे। मेज पर मोबाइल पड़ा था, मगर हुरैन गायब थी। साइमा बेगम की चीख पूरे हाल में गूंजी, हुरैन कहाँ गई? ये चीख इस वक्त सुनी गई जब अरहम लाला अपनी मुकम्मल सफेद शेरवानी में निकाह के लिए बिल्कुल तैयार सीढ़ियां उतरकर नीचे कदम रख रहे थे। इसके चेहरे पर फतह मंदी और कंट्रोल का ठहरा हुआ तासुर था। जब इससे ये होलनाक खबर सुनाई गई कि दुल्हन निकाह से पहले फरार हो चुकी है, तो अरहम के कदम वहीं मुंजमद हो गए। इसके खूबसूरत पुरवकार चेहरे पर मौजूद सर्द वकार एक लम्हे में गुस्से और गजब की खतरनाक लहर में बदल गया। इसके माथे पर एक गहरी शुकन उभरी। इससे यकीन था कि ये इस बागी लड़की की बुज़दिलाना हरकत है। ये फरार इसके खानदान की इज्जत पर जलता हुआ दाग था। अरहम ने मुठ्ठियां भींच ली। इसकी आंखें शोले उगलने लगीं और वो गुस्से में इतना खूबसूरत और खौफनाक लग रहा था कि किसी की हिम्मत ना हुई इसके करीब आए। इसने हद पार कर दी। ये अरहम का पहला और आखिरी ख्याल था। इससे पहले कि वो फौरन अमली इक़दामात की तरफ मतवज्जो होता, निकाह के लिए सजाए गए ड्राइंग रूम में इस वक्त कहराम मचा हुआ था। अरहम लाला अपनी नफासत से पहनी हुई सफेद शेरवानी में सीढ़ियों के दरमियान साकित खड़े थे। इनके चेहरे पर खौफनाक खामोशी थी। इसके नीचे साइमा बेगम और जहूर साहब आपस में सरगोशियां कर रहे थे, जो जल्द ही चीखों में बदल गई। रिश्तेदार खवातीन के दरमियान एक होलनाक सरगोशी चल रही थी। हर कोई इस अचानक और शर्मनाक फरार के बारे में अपनी राय दे रहा था। मैं कहती हूँ ये इसकी तरबियत का कसूर है, ताई अम्मी ने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए कहा। इसकी आजादी का नतीजा है। मैंने पहले कहा था इतनी छूट नहीं देनी चाहिए लड़की को। हाय अब क्या होगा? एक और आंटी ने अपने दिल पर हाथ रखा। बचपन से इसकी मंगनी तय थी और अब शादी के दिन फरार। खानदान की इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? साइमा बेगम रोते हुए जमीन पर बैठ गईं। मेरी बच्ची, वो कहाँ चली गई? किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? ठीक इसी लम्हे अरहम ने एक कदम सीढ़ी से नीचे रखा। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि एक हुक्म था। बस इनकी गरजदार सर्द आवाज ने तमाम शोर को ऐसे काट दिया जैसे बिजली की तलवार। एक लफ्ज भी मजीद किसी की जुबान से ना निकले। आप सबको मेरी बात सुननी होगी। फौरन इनकी आंखों में वो जुनूनी ताकत और जलादाना अज़म था कि तमाम खवातीन फौरन खामोश होकर इन्हें देखने लगी। साइमा बेगम का रोना भी सिसकियां बनकर रह गया। जहूर साहब आप वालिद साहब को संभालें। कोई भी शख्स कोई भी इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगा जब तक कि मैं न कहूं। अरहम ने अपने वालिद को मुखातिब किया। और आप सब, इसने खवातीन की तरफ देखकर कहा, अपने मुंह बंद रखें। अगर ये बात बाहर निकली कि दुल्हन निकाह से भागी है, तो मैं खानदान में मौजूद हर फर्द को जिम्मेदार ठहराऊंगा। अरहम अब कमरे में मौजूद हर ताकतवर फर्द से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो सीधे किचन के रास्ते की तरफ बढ़ा, जहां अफवाहों के मुताबिक हुरैन गायब हुई थी।
वहां रजिया पुरानी मुलाजमा किचन के दरवाजे के पास डरी सहमी बैठी थी। अरहम इनके सामने खड़ा हो गया। इसकी शेरवानी की नफासत और इसका वकार रजिया के लिए मौत का फरिश्ता बन गया। तुमने देखा? अरहम ने पूछा। आवाज धीमी थी मगर चांदी की तरह तेज। रजिया ने डर के मारे सर नफी में हिला दिया। नहीं साहब, झूठ मत बोलो। अरहम ने अपने हाथ की उंगलियों को उसके चेहरे के करीब किया। हुरैन वही मोबाइल छोड़कर गायब हुई। मुझे तमाम घर के दाखिली रास्तों की मालूमात है। दरवाजा लॉक था। सिर्फ 2 रास्ते थे, सामने या पीछे का दरवाजा। तुम यहीं बैठी थी? रजिया का खौफ फिर से दबोच गया। इसने अरहम के कदमों में गिरने की कोशिश की। साहब मुझे माफ कर दें। बीबी ने मुझे मजबूर किया था। मजबूर? अरहम के होंठों पर हकारत की लहर आई। इसे तुम्हें किस लालच में मेरे खिलाफ किया? सोने की चूड़ी और कुछ पैसे। रजिया ने रोते हुए सारा सच उगल दिया। इसने इससे पीछे का दरवाजा खुलवाकर बाहर से रिक्शे का इंतजाम करवाया और वो अपनी सहेली अरीशा बीबी के घर गई हैं। अरीशा का नाम। अरहम की आंखों में एक शदीद चमक आई। ये वही नाम था जिसके बारे में हुरैन के कॉलेज के दिनों में इसे कई बार शिकायतें मिली थी कि वो हुरैन को बगावत पर उकसाती है। तुम्हें जिंदा रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए मिली है कि तुमने सच बोल दिया। अरहम ने सर्द लहजे में कहा। अभी भी यहीं रहो, और अगर तुमने किसी को अरीशा का नाम बताया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए इस सोने की चूड़ी से ज्यादा महंगा होगा। अरहम फौरन मुड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसने अपनी जेब से कार की चाबियां निकाली और अपनी नफासत से बने हॉल से निकलने लगा। अरहम तुम कहाँ जा रहे हो? तैमूर साहब ने परेशानी से पूछा। मैं अपनी चीज वापस लेने जा रहा हूँ। अरहम ने पलट कर कहा। ये सब अब मेरी गैरत का मामला बन गया है। वो ये नहीं समझती कि ये खेल इसने मेरे साथ शुरू किया है और इसका इख्तिताम अब मैं करूंगा। अरहम अपनी शेरवानी में मलबूस इस घर से बाहर निकला जहां एक निकाह की तकरीब सोग में बदल चुकी थी। इसने अपनी स्याह लग्जरी कार का दरवाजा खोला और बगैर किसी ताखिर के गाड़ी स्टार्ट कर दी। शाम की गलियों और सड़कों पर अरहम की तेज रफ्तार गाड़ी अंधेरे में एक सफेद धब्बे की तरह भाग रही थी। वो अपनी शादी की शेरवानी में मलबूस था। एक दूल्हा जो अपनी दुल्हन को लाने नहीं बल्कि एक मगरूर कैदी को दोबारा पकड़ने जा रहा था। शहर की भीड़, रश और आम लोगों की जिंदगी इसके लिए बेमायनी थी। इसकी आंखें जो आमतौर पर बिजनेस के मामलात में तेज और दूरअंदेश होती थीं, अब इंतकाम और गुस्से से भरी हुई थी। वो सिर्फ एक ही चीज देख रहा था, अरीशा का घर। अरहम शेरवानी में सिर्फ एक दुल्हा नहीं था, वो एक ऐसा शिकारी था जो अपने गुस्से और वकार की खातिर फरार होने वाले शिकार का हर कीमत पर ताकुब कर रहा था। ये वो वाहिद तरीका था जिससे वो खानदान की इज्जत और हुरैन की बगावत को हमेशा के लिए कुचल सकता था। शहर की पोश कॉलोनी की सुनसान खामोश गली में अरहम की स्याह गाड़ी एक जख्मी दरिंदे की तरह रुकी। सफेद शेरवानी जो चंद घंटे पहले निकाह की खूबसूरती का इजहार थी, अब जुनूनी ताकुब की धूल में लिथर चुकी थी। सामने अरीशा का छोटा मगर नफीस घर था। अरहम गाड़ी से बाहर निकला। इसके चेहरे पर मौजूद सारा वकार खत्म हो चुका था। इस वक्त उसी वह घोसीला इंतकाम पर आमादा शख्स था जिसकी इज्जत को इसकी होने वाली दुल्हन ने सरेआम चैलेंज किया था। इसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने के बजाय लोहे के मजबूत दरवाजे को बिजली के झटके की तरह पीटना शुरू कर दिया, जिससे वो अंदर की तमाम चीजों को तबाह कर देना चाहता हो। अरीशा, मैं जानता हूँ वो अंदर है, बाहर निकालो उसे। अरहम की आवाज सड़क की खामोशी में एक चीख की तरह गूंजी। कुछ लम्हे बाद दरवाजा आधा खुला और अरीशा वहां खड़ी थी। इसके चेहरे पर किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि एक जारहाना और मज़ाहमती तासुर था। कौन है? अरीशा ने मसनूई हैरानगी से पूछा। और आप इस शेरवानी में रात के वक्त की अकेली लड़की के घर के बाहर क्या कर रहे हैं अरहम लाला? वक्त जाया मत करो। अरहम ने अपना गुस्सा काबू में रखते हुए दांत पीसे, लेकिन इसकी आंखों में आग भड़क रही थी। हुरैन को बाहर निकालो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आज तो इसका निकाह था ना। मैं इसके मुतालिक और कुछ भी नहीं जानती। आप यहाँ से चले जाएं। अरीशा ने दरवाजा मजीद बंद करने की कोशिश की। मैंने कल से हुरैन को नहीं देखा। आप तशरीफ ले जाएं। आप यहाँ शोर कर रहे हैं। इस झूठ और गैर जरूरी गुस्ताखी पर अरहम का सब्र जवाब दे गया। इसने एक जोरदार झटका देकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मगर अरीशा फौरन चीख कर इसके सामने आ गई। एक कदम भी आगे ना बढ़ाओ। ये मेरा घर है। अगर आपने अंदर आने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। अरीशा ने अपने फोन की तरफ इशारा किया। अरीशा के इस आखिरी धमकी ने वो काम किया जो हुरैन के आंसू न कर पाए थे। अरहम ने एक लम्हे के लिए पलट कर अरीशा की तरफ देखा। वो जानता था कि अगर इसने कानूनी बिछड़े में खुद को डाला तो खानदान की बाकी बची इज्जत भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अरहम ने ठंडी जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। पुलिस को फोन कर दो, मगर क्या तुम्हारा
नाम भी इसमें आएगा? क्या तुम्हारे वालिद को मालूम होगा कि तुमने एक भागी हुई लड़की को पनाह दी? अरहम के खामोश दबाव ने काम दिखाया। अलीशा का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ, फिर इसकी तमाम मज़ाहमत टूट गई। इसने गुस्से से दांत पीसते हुए अंदर की तरफ देखा। बाहर आ जाओ हुरैन, तुमने मुझे भी खतरे में डाल दिया है। और फिर हुरैन दरवाजे से बाहर निकली। इसके चेहरे पर हरासानी और खौफ था, लेकिन एक लम्हे के लिए इसकी नजर अरहम की आंखों से मिली, जहां शिकस्त का कोई तासुर नहीं था। इसकी बगावत की आग अभी भी मद्धम नहीं हुई। अरहम ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। इसने हुरैन का बाजू लोहे की गिरफ्त से पकड़ा, जैसे वो कोई बेजान चीज हो। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे भाग जाओगी? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। हुरैन ने पूरी ताकत से मज़ाहमत की और चीख कर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे घसीटो मत, मैं खुद चल रही हूँ, तुम्हारी मर्जी खत्म हो चुकी है, अरहम ने बेरहमी से कहा और इससे जबरदस्ती घसीट कर कार की तरफ ले गया। सुनसान गली में हुरैन की चीखों पुकार गूंज रही थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए इस पर अपने नाखूनों से हमला कर रही थी। हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो गाड़ी में ना बैठ सके, लेकिन अरहम की फौलादी ताकत के आगे इसकी नहीफ मज़ाहमत बेकार थी। अरहम ने तकरीबन इसे पटक कर फ्रंट सीट पर फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। अलीशा दरवाजा पर खड़ी थी। इसकी आंखों में गुस्सा और अफसोस था। अरहम ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए आखिरी बार अलीशा की तरफ देखा। आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, समझी तुम? गाड़ी सड़कों पर बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। हुरैन रो रही थी और गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे बाहर निकालो, तुम मुझे अगवा कर रहे हो। अगवा? अरहम ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामे रखा और हंस पड़ा। इसकी हंसी में इंतहाई तल्खी और हकारत थी। तुम मेरी मलकियत हो, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। निकाह के दिन इस तरह भागना क्या होता है, तुम्हें अंदाजा भी है? हुरैन ने इस पर गुस्से से पलटकर चीखना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूं, तुम्हारी कैद हूं। मैंने कल ही तुम्हारे बांझ होने की वजह से इनकार किया था और अब तुम? यही वो जुमला था जो आखिरी तिनके का काम कर गया। अरहम ने एक शदीद झटके के साथ ब्रेक लगाया। गाड़ी सुनसान तारीख सड़क के दरमियान झाड़ियों के करीब रुक गई। खामोशी और गुस्सा कमरे में भर गया। अरहम ने गाड़ी का इंजन बंद किया और अपनी शेरवानी की तरफ इशारा किया। इसके चेहरे के निचले जबड़े की नसें फूल रही थी। बांझ, तुमने खानदान के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरी जासूसी की, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, फरार की साजिश की, और अब भी? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? इसका गुस्सा घाटी के लावे की तरह उबल पड़ा। इसने मुड़कर हुरैन की तरफ देखा। हुरैन इससे झगड़ने लगी और इस पर तमस्कुर कर रही थी। इसके अल्फाज अरहम के अंदरूनी अज़म को पाश पाश कर रहे थे। गुस्से के एक नाकाबिले बर्दाश्त लम्हे में जब हुरैन का हाथ इसके चेहरे की तरफ इशारा करा था, अरहम ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ हुरैन के गाल पर रसीद कर दिया। हुरैन की चीख गाड़ी में दब कर रह गई। वो दंग रह गई। इसके गाल पर हाथ का निशान फौरन उभर आया और वह इस जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा इस जिल्लत और बेइज्जती पर हैरान थी जो अरहम ने इसे दी। इसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। अरहम ने खुद भी आंखें बंद कर ली। वो खुद पर हैरान था कि इसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी खातून पर हाथ उठाया था। इसके हाथ कांप रहे थे। शेरवानी में मलबूस दूल्हा अब इंतकाम के जुनून में डूबा हुआ था। ये शदीद जज्बाती तसादुम इस नुक्ता अरूज पर पहुंचा था जहां तमाम रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। हुरैन की चीख और फिर मुकम्मल खामोशी ने गाड़ी के अंदर का माहौल मुंजमद कर दिया। सड़क की तारीकी और खामोशी में थप्पड़ की आवाज की गूंज अरहम के कानों में भी बहुत देर तक सुनाई देती रही। वो फौरन अपने फल पर शदीद शर्मिंदगी और वहशत का शिकार हो गया। इसके हाथ में एक लर्जिश थी और इसका सारा गुस्सा एक पल में गहरे पछतावे में बदल गया। ये वो अरहम नहीं था जो खुद को एक पुख्ता काबू में रखने वाला शख्स समझता था। इसने ना सिर्फ अपने गुस्से का इजहार कर दिया, बल्कि इसने एक ऐसी लड़की पर हाथ उठाया था जिसे वो अपने खानदान की इज्जत और वकार का हिस्सा समझता था। वो फौरी तौर पर अपने हाथ को सीट से हटाकर दूर ले गया, जिसे हुरैन को छूने से जिसे बिजली का झटका लगाओ। इसने कपकपाते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला और फौरन बाहर निकल गया। वो शेरवानी में मलबूस रात के अंधेरे में सड़क के किनारे खड़ा हो गया, हुरैन से एक महफूज फासला इख्तियार करते हुए जिससे वो खुद से भी दूर रहना चाहता हो। हुरैन गाड़ी के अंदर बैठी हुई अपने सूजे हुए गाल पर हाथ रखे आंसू के साथ साथ एक होलनाक सुकून भी महसूस कर रही थी। इसे पहली बार अरहम को कमजोर होते, हैरान होते और खुद से खौफजदा होते हुए देखा था। अरहम गाड़ी की छत पर झुका और अपनी शेरवानी के कफ को सख्ती से पकड़ लिया। इसकी आवाज अब हुक्म नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए इतराफ का अक्स थी। मैं अपने आप खो बैठा, इसने बामुश्किल कहा।
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے افسوس ہے، حورین بہت افسوس ہے۔ اس کے سچے اور غیر متوقع پچھتاوے نے حورین کی طویل عرصے سے جمع شدہ نفرت کو زبان دے دی۔ اب اسے مزید کوئی ڈر نہیں تھا، اور ہم کی اس اچانک انسانی روپ سے خوفزدہ نہیں ہوئی، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اپنی ساری تکلیف بیان کر سکتی تھی۔ حورین نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور سیدھی ارحم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ ڈر کر بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک مظلوم قیدی کی طرح جو اپنے جلاد کو للکار رہی ہو۔ کیا فائدہ اس افسوس کا؟ حورین نے چیخ کر کہا۔ آپ کو اپنی طاقت، اپنی عزت، اپنی انا سے کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ آپ صرف اس بات پر شرمندہ ہیں کہ آپ نے اپنا کنٹرول کیوں کھو دیا؟ اس نے اپنا سوجا ہوا گال ارحم کی طرف کیا اور اس کی آواز میں اب سسکیاں نہیں بلکہ غصے کی لہر تھی۔ میں بھاگی کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں نے جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ اس کے لیے کیونکہ آپ نے میری زندگی کو قید بنا دیا تھا۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، مگر آپ حقیقت میں مجھے مٹانا چاہتے تھے۔ حورین نے گہرا سانس لیا اور حقیقی شکایتوں کا آغاز کیا جو برسوں سے اس کے دل میں دفن تھی۔ آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی اور میں نے ایک ڈائری لکھی تھی؟ آپ نے وہ ڈائری پڑھ کر مجھ پر تنقید کی تھی کہ میں بچکانہ خواب دیکھتی ہوں۔ آپ میری ہر بات، میرے ہر قدم پر جاسوسی کرتے رہے۔ حورین نے اپنی آواز کو مزید بلند کیا۔ آپ نے میرے ہر دوست پر پابندی لگائی، عریشہ کو بھی آپ نے دھمکیاں دی تھی کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ آپ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ میں ایک نادان بچہ ہوں جسے آپ اپنے مستقبل کے بزنس پلان کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے کبھی ایک عقل مند فرد نہیں سمجھا جس کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے۔ حورین اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ میں نے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا تھا ارحم لالا، میں آپ سے خوفزدہ تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے ساتھ شادی کے بعد امریکہ میں کیا کرتی؟ ایک سجی سجائی گڑیا بن کر آپ کے فلیٹ میں بیٹھی رہتی جس کی زندگی کے تمام فیصلے آپ کا ہاتھ کرتا۔ ارحم خاموشی سے سنتا رہا، اس نے ایک بار بھی مداخلت نہیں کی۔ اس کی شیروانی میں ملبوس پورے تمام شخصیت اب ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حورین کے لفظ خاص طور پر میں نے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا تھا اس کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس سے احساس ہوا کہ اس کے محافظانہ رویے نے حورین کو نہیں بلکہ صرف اس کی خود ساختہ اصولوں کو تحفظ دیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ آپ میری ڈائری کی طرح میری پوری زندگی کو بھی پڑھ کر ختم کر دیں گے۔ آپ نے کبھی مجھ پر اپنا پیار نہیں جتایا، حالانکہ دادا ابو نے بچپن سے میری نسبت آپ سے طے کر دی تھی۔ جب بابا کا انتقال ہوا جب میں محض 7 سال کی تھی اور آپ 14 برس کے، ہماری عمر میں کتنا زیادہ فرق ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی مجھے اس نظر سے یا پھر پیار کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ مجھ پر روک روک اور روک جھاڑتے آئے۔ حورین نے اپنی آخری بات کہی اور ہم نے ٹھنڈی سڑک پر اپنا سر جھکا لیا۔ وہ سچ سن رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان کوئی حکمی تعلق نہیں بلکہ ایک تلخ انسانی مکالمہ ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ارحم نے اعتراف کیا۔ اس کی آواز میں گہری تھکاوٹ تھی۔ میں نے واقعی تم پر بھروسہ نہیں کیا، میں نے تمہاری حفاظت کے نام پر تمہیں قید کیا، میں نے تمہیں تمہارے فیصلوں کا حق نہیں دیا۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں جو عام طور پر شدید دباؤ سے بھری رہتی تھیں اب خالی اور پشیمان تھیں۔ میں تمہاری بغاوت کا سبب ہوں، مجھے احساس ہو گیا۔ میرا وہ تمام کنٹرول، وہ غصہ، وہ صرف میرے ڈر کو چھپانے کا بہانہ تھا، ڈر کہ کہیں تم میرے ہاتھ سے نکل نہ جاؤ۔ ارحم کے حقیقی اعتراف نے حورین کے غصے کی شدت کو کم کر دیا۔ اس نے پہلی بار ارحم کو ایک کمزور، خوفزدہ انسان کے طور پر دیکھا، نہ کہ جلاد۔ وہ صرف ایک ایسا شخص تھا جو محبت کو قید اور کنٹرول کا نام دے بیٹھا تھا۔ خاموشی گہری ہو گئی، لیکن اب اس میں خوف نہیں بلکہ تخلیقی اداسی تھی۔ وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے سچ بولا تھا۔ اندھیری سڑک پر اس جذباتی پھٹ پڑنے کے بعد ارحم نے حورین کو خاموشی سے گاڑی میں واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو آہستہ آہستہ ایک مقامی قریبی پارک کی طرف لے گیا جہاں رات کے اس پہر میں ایک چھوٹا سا سنسان کیفے کھلا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب گھر واپس جانا اور اس تناؤ سے نبٹنا ممکن نہیں، پہلے ان کے درمیان مسئلے کا حل ہونا ضروری تھا۔ کیفے میں صرف ایک بوڑھا ویٹر موجود تھا جو خاموشی سے ان کے کونے والی میز پر کافی رکھ کر چلا گیا۔ ارحم نے اپنی شیروانی کے دامن کو جھاڑا اور حورین نے اب بھی اپنے سوجے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ جگہ نکاح کی تیاریوں سے 1000 میل دور محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم نے لمبی سانس لی اور اپنے اندرونی خوف کو قابو کیا۔ حورین، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں وہی نیا غیر مانوس اعتراف کا لہجہ تھا۔ تم نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے،
मैं तुम्हें कभी एक बराबर का इंसान नहीं समझा। मेरे नजदीक तो मेरी जिम्मेदारी और मेरे कंट्रोल का हिस्सा थी। इसने कॉफी का कप उठाया और फिर वापस रख दिया। अब मैं एक मुआहदा पेश कर रहा हूँ। हुरैन ने शक भरी नजरों से देखा। मुआहदा? क्या आप फिर से कोई नया जेल का कानून नाफिज करने जा रहे हैं? नहीं। अरहम ने नफी में सर हिलाया। ये तुम्हारी आजादी की कीमत होगी। अरहम ने मेज पर अपने हाथ रखे और हुरैन की आंखों में देखा। इसकी आंखों में अब अज़म था, मगर इस बार ये जिलाताना कंट्रोल नहीं बल्कि हकीकी तलाफी का अज़म था। तुमने मेरे घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मैंने तुम्हें शदीद तकलीफ पहुंचाई। हम दोनों ही कसूरवार हैं। अगर हम इस मामले को आजादी खानदान के सामने ले जाते हैं तो हमारे खानदान की बरसों की वकार मिट्टी में मिल जाएगी। तुमने जिन बुजुर्गों के सामने ये इल्जाम लगाया वो सब रुस्वा होंगे। मेरे वालिदैन, तुम्हें, तुम्हारी वालदा। अरहम ने बात जारी रखी। हम दोनों ने जो भी किया इससे हम फरार नहीं हो सकते, लेकिन हम मिलकर अपने खानदान को इस शर्मिंदगी से बचा सकते हैं। कैसे? हुरैन ने सर्द मेहरी से पूछा। तुम निकाह कबूल करो। अरहम ने बराह रास्त पेशकश की। हम कल सुबह की फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधा अमेरिका जाएंगे। वहां पहुंचकर मैं तुम्हें मुकम्मल आजादी देता हूँ। कैसी आजादी? हुरैन को शक हुआ। क्या आप फिर से मेरी जिंदगी अपने कंट्रोल में ले लेंगे? अरहम ने गहरी नजरों से इसे देखा। नहीं, अमेरिका में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी होगी। तुम जहां चाहोगी रहोगी। मैं तुम्हारे लिए एक अलग अपार्टमेंट लेकर दूंगा। तुम्हारी तालीम, तुम्हारा करियर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी मर्जी होगी। मुझसे कोई पूछताछ नहीं होगी। इसने मजीद वजाहत की। ये निकाह सिर्फ नाम का होगा, खानदान की इज्जत बचाने का पर्दा। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। जब तक तुम खुद ना चाहो हम सिर्फ शरीके हयात कहलाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो कल को दादाबू तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे और तुम नहीं जानती कि आने वाला इंसान तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ निकाह करके तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो। तुम जैसा चाहो रह सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। लेकिन अगर मैंने इस रिश्ते में अपने कदम पीछे कर लिए तो कोई और तुमसे शादी कर लेगा और दादा अबू मजीद तुम्हें इस घर में नहीं बिठाएंगे, क्योंकि तुम एक दफा इस घर से निकाह के वक्त भाग गई हो। हुरैन हैरत से इसे देख रही थी। क्या वही जल्लाद था जिस वक्त इसके सामने बैठा था? ये एक ऐसा सौदा था जिसमें वो खानदान की रुसवाई के बदले अपनी आजादी हासिल कर सकती थी। ये खतरनाक जुआ था, मगर इससे अमेरिका में मुकम्मल आजादी मिल रही थी जो इससे यहाँ कभी नहीं मिल सकती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हुरैन ने कहा। आप आज भी कह सकते हैं कि आप इस बांझपन के झूठ का बदला किसी भी तरह ले सकते हैं। अरहम ने सर नफी में हिलाया। कल का अरहम कल का था जो अपने गुस्से और कंट्रोल का गुलाम था। मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी इसने मुझे बदल दिया है। मैं तुम्हें ये मुआहदा किसी लालच या बदले के लिए नहीं बल्कि इस गुनाह का कफारा अदा करने के लिए दे रहा हूं जो मैंने तुम पर हाथ उठाकर किया। इसने मजीद कहा। इसका लहजा अब मिन्नत का था। तुम्हारा फरार मेरे लिए खानदान की तौहीन था, मगर तुम्हारा ये इतराफ कि मैं तुम्हें कैद करा था मेरे लिए मेरी जात की तौहीन था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो, बल्कि इस निकाह को एक मौका दो, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारा जुल्लाद नहीं बल्कि तुम्हारा मुहाफिज बन सकता हूं जो तुम्हारी आजादी की भी हिफाजत करे। हुरैन ने सोचा, फिर जवाब दिया। मुझे एक शर्त मंजूर है। हुरैन ने बहुत देर बाद फैसला कुन अंदाज में कहा कि मुआहदा आजादी और इज्जत का कल सबके सामने होगा। आपको खानदान के तमाम बुजुर्गों के सामने खड़े होकर यह ऐलान करना होगा कि मेरी तालीम मेरी मर्जी मेरी अपनी होगी, ताकि मुझे यकीन हो कि आप कल मुकर नहीं जाएंगे। अरहम के चेहरे पर एक गहरा सुकून आया। इसने हुरैन की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं सबके सामने ऐलान करूंगा कि तुम्हारी आजादी तुम्हारी अमानत है। अब हमें फौरन घर वापस जाना होगा, इससे पहले कि सब पुलिस में रिपोर्ट करें। हुरैन ने हाथ नहीं मिलाया, मगर इसकी आंखों में अब शक के बजाय तजुर्बाती एतमाद झलक रहा था। ठीक है, हम चाहते हैं अरहम लाला। यूं एक शदीद बगावत, शर्मिंदगी और तशद्दुद के बाद लोगों ने एक अनोखा और गैर जज्बाती मुआहदा कर लिया जिसमें आजादी, इज्जत और एक नामनिहाद निकाह की कीमत अदा की जाती है। सर्द रात की तारीकी में अरहम की स्याह गाड़ी एक बार फिर हवेली के मरकजी गेट से अंदर दाखिल हुई। बाहर का माहौल वैसा ही होलनाक था जैसे वो छोड़कर गए थे, मगर गेट के अंदर कदम रखते ही अफरा तफरी, सरगोशियों और सवालिया निगाहों का तूफान इन्हें घेरने के लिए तैयार था।
یہ دونوں نہیں بلکہ وہ سفید شیروانی میں ملبوس ارہم تھا جس نے حویلی کے داخلی دروازے پر قدم رکھا۔ حرین اس کے پیچھے تھی، اس کے گال پر تھپڑ کا نشان بھی تھا، مگر اس کے چہرے پر اب فرار کا خوف نہیں بلکہ مشروط اطمینان تھا۔ ہال میں تمام رشتہ دار اور خاندان کے بزرگ جو شدید پریشانی میں گھل رہے تھے ان دونوں کو دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ ظہور صاحب اور دادا جان فوری طور پر ارہم کی طرف لپکے۔ ارہم تم کہاں چلے گئے تھے؟ ظہور صاحب کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اور حرین تم کہاں تھی؟ سائمہ بیگم دوڑ کر حرین کے پاس آئیں۔ میری بچی تم ٹھیک تو ہو؟ تم کیوں بھاگی تھی؟ انہوں نے حرین کے چہرے کو چھوا اور سوجے ہوئے گال کو دیکھ کر ایک خوفناک سسکی لی۔ یہ کیا ہوا؟ حرین فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ارہم کی طرف دیکھا۔ ارہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں اچھا کر سب سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ یہ وہی جلادانہ کنٹرول تھا مگر اس بار اس کا مقصد مختلف تھا۔ مجھے تمام سوالوں کے جواب معلوم ہیں۔ ارہم کی آواز ہال میں گونجی۔ آپ سب کا یہیں موجود رہنا ضروری تھا، خاص طور پر دادا جان اور بابا جان کا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی نظریں سیدھا دادا جان کے چہرے پر تھیں۔ یہ سب میری غلطی تھی۔ تمام حاضرین خصوصاً خواتین حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ارہم لالا اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ کیسا منظر تھا جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی حفاظت کے نام پر حرین کو غیر ضروری طور پر قید کر رکھا تھا۔ میں نے اسے ایک ذمہ داری سمجھا، نہ کہ ایک آزاد فرد۔ اس کی بغاوت، اس کا فرار میرے سخت رویے کا رد عمل تھا۔ دادا جان نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو ارہم؟ یہ لڑکی تم پر اتنی بڑی تہمت لگا کر نکاح سے بھاگی اور تم اسے جواز دے رہے ہو؟ ارہم نے حرین کی طرف مڑ کر دیکھا۔ حرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ معاہدے کی پاسداری کا لمحہ تھا۔ اس نے نظروں میں ارہم کو یاد دلایا کہ اسے اپنا وعدہ سب کے سامنے دہرانا ہے۔ ارہم نے حرین کے سوجے ہوئے گال پر پڑنے والے اپنے ہاتھ کے نشان پر ایک سیکنڈ کے لیے نظر ڈالی۔ اب براہ راست تمام بزرگوں، خاندان کے مردوں اور عورتوں کو مخاطب کیا۔ میرے والد، میرے بزرگوں اور میری والدہ، حرین نے نکاح کے لیے ایک شرط رکھی اور میں آج سب کے سامنے اس شرط کو قبول کرتا ہوں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا۔ اس کی آواز ایک حاکمانہ اعلان کی طرح گونجی۔ یہ نکاح ہوگا اور اس کا مقصد صرف خاندان کی عزت کو بچانا ہے۔ میں کل اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا، مگر وہاں جا کر ارہم نے گہری سانس لی اور مکمل طور پر آزادی ہوگی۔ اس کی زندگی، اس کی تعلیم، اس کا کیریئر، اس کے ذاتی فیصلے، اس کا طرز زندگی، سب اس کی ذاتی مرضی کے تابع ہوں گے۔ میں اس کے فیصلوں پر نہ کوئی اعتراض کروں گا، نہ کوئی پابندی لگاؤں گا۔ اس کی آزادی کا مکمل احترام میری ذمہ داری ہوگا۔ اس اعلان پر ہال میں موجود تمام خواتین کے درمیان تیز سرگوشیوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے ارہم؟ اپنی مرضی؟ یہ کیسا نکاح ہے؟ امریکہ میں آزادی؟ تائی امی نے فوراً اعتراض کیا، ارہم تم یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ یہ ایک نکاح ہے، مذاق نہیں۔ آپ اسے تمام تر آزادی دیں گے؟ یہ اپنی ذمہ داری کیسے سمجھے گا؟ ارہم نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی بات نہیں سنی۔ اسے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف حرین کی طرف دیکھا۔ یہ اعلان صرف خاندان کے لیے نہیں بلکہ حرین کے لیے ایک ضمانت تھا۔ حرین اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں خاندان کا سخت ترین فرد اپنی طاقتور شخصیت کا مالک تھا۔ سب سے بڑے جھوٹ، بانجپن کا الزام اور سب سے بڑی رسوائی، فرار کو صرف ایک آزادی ملے گی، معاہدے کے لیے جواز دے رہا تھا۔ یہ صرف وعدہ نہیں تھا، یہ ارہم کا عزت پر لگنے والا داغ تھا جو حرین کے کہنے پر قبول کر لیا گیا۔ حرین کی آنکھوں میں جلد چند گھنٹے سے شدید نفرت اور شک تھا۔ اب پہلی بار اعتماد کی جھلک نظر آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جلاد ہار گیا ہے اور ایک پچھتاوے والا انسان اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ حرین نے آہستہ سے سر ہلایا جس کا مطلب تھا مجھے منظور ہے۔ ارہم نے دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اب تمام رسمی معاملات مکمل کیے جائیں۔ قاضی صاحب منتظر تھے۔ سائمہ بیگم نے روتے ہوئے حرین کی طرف دیکھا۔ کیا تم اب تیار ہو بیٹا؟ حرین نے منصوبے سے جواب دیا، جی امی میں تیار ہوں۔ اس نے نکاح قبول کیا مگر اس کا ذہن اب آزادی کی ایک ایسی جنگ کے لیے تیار تھا جو وہ امریکہ میں جا کر جیتنے والی تھی۔ یہ نکاح نہیں تھا، یہ ایک معاہدہ تھا جس کی قیمت ارہم کو ادا کرنی پڑنی تھی۔ حویلی میں ایک عجیب سا سکون چھا چکا تھا جو دراصل شدید تناؤ کے بعد کی تھکن تھی۔ رات کے آخری پہر جب باہر کے کمکمے مدھم پڑ چکے تھے، نکاح کی رسمی کارروائی تیزی سے مکمل کر لی گئی۔ حرین کو اس کے زبردستی پہنائے گئے عروسی جوڑے میں بٹھایا گیا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کے پیچھے اس تھپڑ کا نشان اور رات بھر کی جنگ کا ہلکا سا تاثر باقی تھا۔
वो खामोश थी। इसकी आंखें अब आंसू बहाने की बजाय अज़म और ठहराव से भरी हुई थी। जब काजी साहब ने हुरैन से कबूल है कहने को कहा तो इसकी आवाज में वो खौफ या हिचकिचाहट नहीं थी जो चंद घंटे पहले थी। इससे वाज़ेह पुरइत्माद लहजे में 3 बार कबूल है कहा। इसने निकाह कबूल नहीं किया था बल्कि आजादी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दूसरी तरफ अरहम ने भी इसी सर्द और पुरसकून अंदाज में निकाह कबूल किया। निकाह के फौरन बाद रुखसती का गैर मुतवक्को और जज्बाती मंजर शुरू हुआ। साइमा बेगम जो रात भर रो रो कर हलकान हो चुकी थी, हुरैन से लिपट गई। मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहना, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी मदद ना कर सकी। मां ने सिसकते हुए कहा। हुरैन ने मां को तसल्ली दी मगर वो रोई थी क्योंकि इसके जहन में अरहम का मुआहदा गूंज रहा था। इसकी रुखसती की तमाम तर जज्बाती फिजा के पीछे इसकी अंदरूनी आजादी का एहसास मजबूत था। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होगी, ऐसे खुद से कहा। सुबह की पहली किरणें जब हवेली पर पड़ी तो अरहम और हुरैन अपने सफरी बैग के साथ बाहर निकले। अरहम अब शेरवानी में नहीं था बल्कि एक नफीस सूट में मलबूस था जो इसके बिजनेसमैन की शख्सियत का आकाश था। इसके चेहरे पर वही आम संजीदगी थी मगर इस संजीदगी के पीछे रात की शदीद शर्मिंदगी और पछतावे का बोझ था। खानदान के तमाम अफराद एयरपोर्ट के लिए रवाना करने आए थे। रुखसती के इस भीड़ भरे माहौल में भी अरहम ने अपना वादा निभाने का अमल खामोशी से शुरू कर दिया। जब हुरैन की छोटी कजन ने इसके हाथ में एक पुरानी डायरी दी तो अरहम ने इसे देखा, बजाय इसके कि वो कहता कि इसे फेंक दो जैसा कि इसने बचपन में किया था। इसने खामोशी से डायरी हुरैन के हाथ से ली और इसे इसके सफरी बैग में एहतियात से रख दिया। ये पहला इशारा था कि वो इसकी निजी दुनिया का एहतराम कर रहा है। साथ ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे। रश में अरहम ने हुरैन का हाथ नहीं पकड़ा लेकिन इसके एक कदम पीछे चलता रहा जैसे वो आगे चलने की आजादी दे रहा हो। सिक्योरिटी चेक पर जब हुरैन का छोटा बैग स्कैन से गुजरने लगा तो अरहम ने खुद आगे बढ़कर बड़ी नफासत से इसका पासपोर्ट और इसके सारे जरूरी कागजात अपने हाथ में ले लिए ताकि इसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसने हुरैन को एक लफ्ज भी नहीं कहा मगर बगैर कहे इसकी देखभाल कर रहा था। हुरैन ने सब कुछ महसूस किया। क्या वो जल्लाद अरहम नहीं था जो किसी हुक्मी अंदाज में कहता था, इधर देखो, मेरे साथ चलो। ये एक ऐसा शख्स था जो फिक्रमंद और ख्याल रखने वाला था मगर अपनी गलती का कफारा खामोशी से अदा कर रहा था। जब वो जहाज की बिजनेस क्लास में अपनी सीटों पर बैठे तो दरमियान में एक लंबा फासला था। अरहम ने फौरन अपने लैपटॉप पर काम शुरू नहीं किया। वो खामोश बैठा रहा और फिर धीमी आवाज में सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारी पसंद की लाइट सैंडविच मंगवा दिए हैं। हुरैन ने हैरत से अरहम को देखा। इसे अपने निकाह की अफरा तफरी में मालूम ही नहीं था कि वो भूखी है। ये छोटी सी तफसील पर तवज्जो अरहम की शख्सियत का एक नया रुख था। आप सिर्फ जल्लाद नहीं है बल्कि एक ऐसा शख्स जो अपनी कैदी की नहीं अपने साथी की फिक्रमंद कर रहा था। तवील सफर के दौरान हुरैन ने अरहम को पहली बार गहरी नजर से देखा। वो खामोश था, अपने काम पर तवज्जो दे रहा था मगर हर 15 मिनट के बाद वो हुरैन को एक हल्की से निगाह से देखता, ये यकीन करने के लिए कि वो ठीक है। जब हुरैन को सर्दी महसूस हुई तो अरहम ने बगैर पूछे से कंबल निकाल दिया। ये कुछ बगैर किसी दावे या हुक्म के था। हुरैन के दिल में मौजूद बरसों की नफरत अब नरमी और तजस्सुस में बदल रही थी। इसने महसूस किया कि ताकतवर अरहम ने अपनी जुलादाना कंट्रोल इसकी आजादी के बदले छोड़ दिया। जब जहाज अमेरिका की जमीन पर उतरा तो सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क की रोशनियों ने इनका इस्तकबाल किया। अरहम ने सामने लेते हुए हुरैन की तरफ मुड़कर देखा। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। अरहम के चेहरे पर हल्की सी पहली बार सजी मुस्कुराहट आई। इसने इसे एक अलग चाबी दी, एक अपार्टमेंट की चाबी जो सिर्फ हुरैन के लिए तैयार किया गया था। इसने कोई सवाल नहीं किया वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, बस इतना कहा, जब तुम्हें जरूरत हो मुझे फोन कर देना। हुरैन ने चाबी हाथ में ली। ये सिर्फ चाबी नहीं थी, ये नए मुल्क में इसकी आजादाना जिंदगी और खुशगवार जिंदगी की जमानत थी। इनका सफर अब एक तल्ख जबरदस्ती के निकाह से शुरू हुआ था मगर अब वो एक मशरूत आजादाना रिश्ते की जानिब बढ़ रहे थे। जल्लाद रुखसत हो चुका था और मुहाफिज ने अपनी शुरुआत कर दी थी।